हेलो दोस्तों, आज हम मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए वीडियो बना रहे हैं। पहला चैप्टर है, इसमें हम ना हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ कहाँ पे होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, partial differential equation, and also integral equation. This Laplace transform is applicable to continuous function, piecewise continuous function, periodic function, step function, and impulse function. So Laplace transform is important chapter for concern in mathematics, physics, optics, electrical engineering, control engineering, signal processing, and also probability theory. So this is a wide use of this Laplace transform. So we start this chapter. So first of all we take the point definition. Okay, so definition से start करेंगे हम। definition of Laplace transform. So Laplace transform की definition है Laplace transform of f of t is denoted by L of f of t. Okay, and defined by L of f of t is equals to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t into dt. ओके, सो यहाँ पे जो यस है, यस इज अ पैरामीटर, इट कैन बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जिस फंक्शन का भी लाप्लास निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमको क्या करना है? वी सॉल्व इंटीग्रेशन विच इज़ 0 to infinity एंड दिस फंक्शन मल्टीप्लाई e to the power minus st this value. Okay, so this is our definition of a Laplace transform. Sometimes it is also denoted by the letter capital F of s, okay, or small f of s bar. So these are also some notation to use to denote the Laplace transform of f of t. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे t है, t f इज़ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, और उसका लाप्लास निकालने के बाद वी हैव टू गेट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s, ये निकलता है। ओके, तो अब इसके बाद कंडीशन आती है कि किस फंक्शन का हमको लाप्लास निकाल सकते हैं। ठीक है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर sufficient condition for existence of Laplace transform. ओके, किस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? सो पॉइंट नंबर 1 क्या चाहिए? अपना फंक्शन जो एफ ऑफ टी है, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, वो पहले तो एक पीस वाइज कंटिन्यूस चाहिए, कम से कम पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज कंटिन्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेकंड, जो एफ ऑफ टी है वो क्या चाहिए? एफ ऑफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा, ये होना चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा मतलब क्या है? दैट इज देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम अल्फ़ा सच दैट, ऐसे एग्जिस्ट होने चाहिए कैपिटल एम एन अल्फ़ा सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एम इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा टी, एंड दिस इज होल्ड फॉर all t greater than or equal to 0, this symbol for all. Okay, otherwise we can also say, अदरवाइज़ ये दो डिफिनेशन को सेटिस्फाई करना मतलब क्या है? अदरवाइज़ अगर लिमिट एग्जिट होता है, कौन सा? टी टेंस टू इन्फिनिटी वाला लिमिट, जिसमें फंक्शन एफ ऑफ टी को ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी से मल्टीप्लाई है, और ये लिमिट हमको फाइनाइट क्वांटिटी देता है। फाइनाइट क्वांटिटी अगर ये वैल्यू देता है तो वी से दैट दिस एफ ऑफ टी is a function which is to be applicable, or this is to be we can calculate the Laplace transform of this function. Okay,
तो दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ Laplace transform. With this definition, we take some basic example which helps to calculate the Laplace transform. यहाँ पे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है. Find the Laplace transform of this function and we solve this example by using the definition of a Laplace transform. Okay. तो definition क्या है? So we know that Laplace transform of f of t equals to integral 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. ठीक है, दिस डेफिनेशन है. नाउ हियर f of t split into two parts, 0 to 4 and 4 to onwards. So we split this interval 0 to infinity into two parts. So first of all 0 to 4, and we put here the value of f of t is constant t 3 plus 4 to onwards infinity e to the power minus st, and the function value is 0. Okay, now second integral is 0 because here 0, and we just solve only first integral. So 3 is a constant, we put outside the integral 0 to 4 e to the power minus st dt. Okay, the integral is 3 into e to the power minus st upon minus s, and we put here the lower limit 0, upper limit 4. Now when we put upper limit, so 3 as it is, e to the power minus 4s upon minus s minus lower limit e to the power 0 upon minus s. So we get the value, so 3 by s into 1 minus e to the power minus 4s. So this is your Laplace transform of given function, and we solve this example by using our basic definition. Okay, so next example, इस एग्जाम्पल में हमने लिया है फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर when t is lies between 0 to 1 and 0 when t is greater than 1. Okay, so again we know that definition अपनी Laplace of f of t equals to integral 0 to infinity e to the power minus st f of t into dt. ठीक है, तो फिर से एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी गिवन फंक्शन कर निकालने के लिए इंटीग्रल 0 to 1 and 1 to onwards में स्प्लिट हो जाएगा. 0 to 1 e to the power minus t minus st into t square dt प्लस 1 to infinity. यहाँ पे वैल्यू क्या है फंक्शन की? 0 है. तो सेकंड इंटीग्रल तो सॉल्व नहीं करेंगे, 0 है, ओनली सॉल्व फर्स्ट इंटीग्रल. तो फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अपना इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, ये फार्मूला अपना. तो फार्मूला क्या है आपने सबको मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, हम यहाँ पे जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन की पावर ज़्यादा है, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 times इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू थर्ड 3 times इंटीग्रल ऑफ second function minus and continuously so on. This is the extension or the generalized formula of integration by parts. ठीक है, तो we use this formula to here. So first function कौन सा है? t square. Now how we choose first and second function? So by using LIATE rule. ओके ना, यहाँ पे जो LIATE क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है. लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. इस सीक्वेंस में जो फंक्शन फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, और जो सेकंड आता है उसको सेकंड फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लास्ट में है और उसके पहले अलजेब्रिक. ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल बोले तो पॉलिनोमियल बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट. सो टी स्क्वायर इज द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस प्लस एस स्क्वायर. अगेन प्लस 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, सो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब. एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 is 0, so no need to calculate here सेम लिमिट 0 to 1 वी पुट. ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस
एस अपॉन माइनस एस माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी मल्टीप्लिकल में, तो ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे यही टर्म बचता है। सो ई टू द पावर जीरो इज 1 आता है। सो माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस माइनस ये बिकम प्लस, सो 2 अपॉन एस क्यूब। सो दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी। यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं, आपको कॉमन लेना है जो करना है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल वी हैव टू टेकन हियर टू जस्ट understand the how to use the definition of basic definition of Laplace transform to calculate the Laplace transform of given function, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेस इसके एलिमेंट्री फंक्शन कौन से है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।